वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर लास्ट तक बचा रह जाता है और हम इसको अवॉइड करते रहते हैं कि चलो बाद में करेंगे। तो इसलिए आज इस चैप्टर का नंबर है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशंस, इसका मीनिंग देयर आर मोर देन वन रिलेशन, एंड फंक्शंस तो देयर आर मोर देन वन फंक्शन ऑल्सो। तो फर्स्ट चैप्टर टॉपिक रहेगा रिलेशंस। रिलेशंस के लिए आपको वापस चलना पड़ेगा सेट्स में। What are sets? Collection of well-defined distinct object is called sets. A set always represented by capital alphabet and contain of set is called element of set. A is a set having two elements 2 and 5, and B is another set having element 3 and 4. There are different relationship in between sets, subsets, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, बट हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि 11th में काफ़ी हो चुका। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए क्रॉस बी, ए बी है ना, ए बी इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी सच दैट A belongs to A, B belongs to B. So this word AB is called ordered pair. It is called ordered pair because its first element belongs to first set and second element belongs to second set. Due to this, it is called ordered pair. Now the second question is that what is the method to find A cross B? यहाँ पर जो क्रॉस है, जब हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेट, इट इज़ नॉट ए प्रोडक्ट इन सेंस ऑफ सिंपल मैथमेटिक्स, बट इट्स सिंपल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स 2 5 3 4। तो फर्स्ट 2 3 पेयर बनाते हैं, 2 3 ऑर्डर्ड पेयर, 2 4 5 3 and 5 4. These called A cross B, and sometimes we try to write B cross A. In this case, the first element from B and second element from A. Ordered pair completely change. So this is product of set A cross B and B cross A. आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इसको ही डिस्कस करें, 2 3 is the element of A cross B such that 2 belongs to A and 3 belongs to B. रिलेशंस की डेफिनेशन हम 11th में रखते थे। ए रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ A cross B. A relation R is subset of A cross B. It is clear that every element of a relation which represented by R is subset of product of set. For example, if we have a relation having element A comma B such that A greater than B, where A belongs to A, B belongs to B, to write down the relation. Suppose किया the relation defined in A cross B, तो write down the ordered pair where A greater than B. तो where A greater than B is 5 3 and 5 4, correct? If we define another relation R2 AB such that A divide B, A belongs to A, B belongs to B, तो write down the case where A divide B, तो 2 divide 4, तो the element is 2 4, correct? Can we write down a next relation? Yes, R3 such that AB, A equal to B, A belongs to A,
B belongs to B. Write down the relation where first and second element are equal. There is no, तो such relation represented by phi. तो क्लियर, ये हमारा था रिलेशन, व्हाट आर रिलेशन। अब हम आते हैं 12th क्लास में, और जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस, है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो सब डिस्कशन था 11th क्लास के अकॉर्डिंग। अब हम 12th क्लास पर आते हैं, और 12th क्लास का जो स्टार्टिंग है उसको हम डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन। तो उसी तरह से जैसे मूवमेंट था इसे रहेगा, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड, ए रिलेशन, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ए रिलेशन आर in a set A is called number first reflexive. The first type of relation is reflexive. A relation R in a set A is called reflexive. क्या condition है? If A belongs to R when every small a belongs to A, or sometimes we write A related A. तो सेम, बोथ आर सेम, ए रिलेटेड ए, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, ए रिलेशन आर इन सेट ऑफ लाइंस इज रिफ्लेक्सिव फॉर पैरेलल लाइंस। A relation R in set of line is reflexive for parallel line. A parallel line relation is reflexive. Why? Because every line is parallel to itself. So parallel relation is reflexive. Equivalence relation, sorry, equivalent relation. Number 2, symmetric relation. Symmetric. इसको देखिए, इफ ए बी belongs to R implies that BA also belongs to R, AB belongs to capital A, और ऐसे भी लिख सकते हैं, if A related B implies that B related A, A related B तो B related A, यानी if पैरेलल लाइंस का रिलेशन है ना, टू लाइंस हैं L1 पैरेलल टू L2, इसका मीनिंग है ना, A रिलेटेड B। अगर ऐसे लिख दो L2 पैरेलल टू L1 तो B रिलेटेड A, L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी होगा, तो दिस इज रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड और लास्ट रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड, कहाँ पर एंड हुआ, ए बी, तो शुरू करिए, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी, बोथ आर सेम लैंग्वेज, इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड सी। ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो फर्स्टली आपको इनकी लैंग्वेज को समझना है। ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, खुद से ही रिलेटेड है ए रिलेटेड ए, इसमें सिमेट्रिक ऑर्डर चेंज होगा। इफ़ ए रिलेटेड बी तो वी हैव टू प्रूव दैट बी रिलेटेड ए, इफ़ ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी, देन ए शुड बी रिलेटेड टू सी। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। और आगे हम लिखेंगे, ए रिलेशन which is reflexive as well as symmetric and transitive is called equivalence relation। थोड़ा वेट करते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के ऊपर। चलिए हम एक क्वेश्चन से लेते हैं। एल क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन,
let L be the set of all lines in a plane. Let L be the set of all lines in a plane and relation what are represented are, है ना, a relation are defined as, देखते हैं क्या, R is equal to L1 L2. What are L1 L2? Lines such that L1 perpendicular to L2. Check the status of relation. Check it is reflexive, symmetric and transitivity. सभी चेक करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में. क्वेश्चन क्लियर है, लैंग्वेज क्लियर है. क्या कहता है क्वेश्चन? L be the set of relation of all line in a plane and relation are defined by this. तो you have to check the relation. तो देखते हैं फर्स्ट 4 क्या वर्ड लेते हैं? रिफ्लेक्सिव. 4 रिफ्लेक्सिव. तो दोनों L1 L2 को A रिलेटेड A तो आप ऐसा ले लेंगे L1 बिलोंग्स टू R. रीड करेंगे L1 पैरेलल टू L1. इसका मीनिंग बताइए. L1 पैरेलल टू L1 हो सकती है? बताइए. ए लाइन कैन नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. तो L1 पैरेलल टू L2 नहीं है. इसका मीनिंग रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. क्लियर? L1 को चेक करेंगे. यहाँ डालेंगे L1 परपेंडिकुलर टू, सॉरी पैरेलल था, L1 परपेंडिकुलर टू L1 पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो मैंने पैरेलल गलती से लिख दिया. चलिए 4 सिमेट्रिक चेक करेंगे. रिलेशन पूछा है सिमेट्रिक. चलिए L1 L2 belongs to R implies that L1 perpendicular to L2 और L2 L1 belongs to R perpendicular to L2. Both are same statement. यानी L1 perpendicular to L2 can write L2 perpendicular to L1. इसका मीनिंग L1 L2 belongs to R implies that L1 L2 belongs to R implies that L2 L1 also belongs to R. तो R is symmetric. हो गया रिलेशन, है ना. अब हम इसके नेक्स्ट पर आएंगे, थर्ड पॉइंट पर, जिसका नाम है ट्रांजिटिव, है ना. A related B and B related C which implies that, तो देखिए L1 L2 belongs to R implies that L1 perpendicular to L2 and L2 L3 लेंगे यानी AB और BC implies that L2 perpendicular to L3. थोड़ा कॉमन सेंस में देखते हैं. ये लाइन L1 और L2 इस पर परपेंडिकुलर और ये L2 इस पर कोई लाइन ले लो, ये L3 है ना. L3 ये लाइन है इस पर परपेंडिकुलर. तो विच इम्प्लाई दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन L1 एंड L2. तो L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L3 इन पैरेलल हो गई. विच इम्प्लाई दैट L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R, है ना. तो यहाँ से क्या आ रहा है रिजल्ट? L1 पैरेलल टू L3. तो therefore R is not transitive. ये क्वेश्चन था, है ना. तो क्लियर हो गया. इस तरीके से ये बिहेव करता है. ये हमने कुछ एब्स्ट्रैक्ट टर्म दी थी, तो कुछ सिंपल टर्म्स में एक और क्वेश्चन देते हैं. आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 और रिलेशन, इस सेट में रिलेशन
आर ये डिफाइन किया गया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। चेक इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीनों चीज़ें इसमें आपको चेक करनी है, एक एक करके चेक करते हैं। बताइए 4 मेथड वही रहेगा, रिफ्लेक्सिव 1 1 देखिए है 1 1 2 2 तीनों एलिमेंट के खुद से रिलेट हैं, 3 3 बिलोंग्स टू आर, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। 1 1 यस 2 2 ए रिलेटेड ए, 4 सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करिए, एक ये तो तीनों हो गए, इस पेयर को उठाओ 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज होना चाहिए 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, है ना। 1 2 तो गिवन है, 2 1 नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक, यस फॉर ट्रांजिटिव। तो देख लेते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड यहाँ फिनिश हुआ तो दूसरा मिल गया मुझे 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो ए बी ये क्या हुआ बी सी, तो ए सी यानी कि 1 3 बिलोंग्स टू आर है क्या, 1 3 नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव, तो ये आ गया नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये था एक क्वेश्चंस, वन ऑफ द रूल। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे, वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं रूल है, जो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग में सबसे अच्छे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। तो देखिए इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट Z ऑफ इंटीजर्स। इसके काफ़ी क्वेश्चंस हम देखेंगे, आगे आएंगे। गिवन बाई R इक्वल टू ए बी सच दैट 2 डिवाइड a माइनस बी इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन ये रूल। क्या क्वेश्चन है, एक रिलेशन आर विच डिफाइन ऑन सेट जेड, जेड विच इज सेट ऑफ इंटीजर एंड द रिलेशन वाज ऑलवेज क्वेश्चन गिवन लाइक दिस, ए बी इज द ऑर्डर्ड पेयर, रीड एज सच दैट, है ना, ए बी इज द ऑर्डर्ड पेयर, आर इज ए सेट सच दैट ए बी इज ऑर्डर्ड पेयर इन विच 2 डिवाइड a minus b is an equivalence relation, a relation which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation। दो क्वेश्चन हम साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे इस रूल के डिवीजन वाले। तो 2 डिवाइड a माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखते जाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मेथड भी आप साथ साथ चेक करिए। फॉर रिफ्लेक्सिव व्हाट इज द रूल, ए बिलोंग्स टू आर, करेक्ट। तो यहाँ पुट करिए ए बिलोंग्स टू आर, सॉरी दोबारा लिख दिया, इसको यहाँ रीड करिए, विच इम्प्लाई ए की बार लिख लो, 2 डिवाइड ए माइनस ए, यस 2 डिवाइड ए माइनस ए when a is an integer, 2 divide a minus a, 2 divide 0, yes 0 is divisible by every number, है ना। तो it show that R is reflexive, क्लियर। फॉर सिमेट्रिक अगर कोई डाउट है तो यहाँ देखिए, सिमेट्रिक के लिए देखिए A रिलेटेड B देन शुड B रिलेटेड A, ये रूल होना चाहिए। तो चलते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, रीड करिए क्वेश्चन, इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड ए माइनस बी।
अगर 2 डिवाइड करता है a माइनस बी को तो 2 ऑल्सो डिवाइड b माइनस ए, श्योर, देयरफॉर बी ए बिलोंग्स टू आर। हो गया। तो आर इज, माइनस में थोड़ी फर्क पड़ता है, 4 इज डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज माइनस 4 ऑलवेज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ वी विल डिस्कस ट्रांजिटिव। इन सभी क्वेश्चनों में सर थोड़ा सा अगर ध्यान देना है, वो सिर्फ ट्रांजिटिव है, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे लेकिन ध्यान देने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, 2 डिवाइड ए माइनस बी, बी सी बिलोंग्स टू आर, 2 डिवाइड बी माइनस सी। तो इसको आप कैसे डिस्कस करें, यहाँ देख लें, है ना। 2 अगर कहीं लिखा है 8 को 2 डिवाइड करता है तो कितना आ गया 4। तो कुछ भी आएगा क्वेश्चन, तो इसको ऐसे ले लेते हैं कि भाई a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, तो लेट इट इज डिविजिबल बाई m टाइम, और m इज इंटीजर, कुछ ना कुछ तो आएगा ना इंटीजर। तो वी कैन राइट a माइनस बी इज इक्वल टू 2m, और m इज एन इंटीजर। सिमिलरली 2 डिवाइड b माइनस सी, तो ये कोई अलग टर्म्स आएगी, तो 2n ले लिया। a माइनस बी डिवाइड बाई 2, तो सपोज किया द क्वेश्चन टीच m, तो a माइनस बी। क्लियर। इन दोनों को रिलेशन को आप ऐड करें, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस 2m। यहाँ देख रहे हैं ये कैंसिल आउट हो गया। a माइनस बी 2m प्लस n, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस सी इज इक्वल टू m प्लस n। m एंड n इंटीजर, तो उनका सम भी इंटीजर, देयरफॉर a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डिवाइड a माइनस सी, इट इज क्लियर दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी आर इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ध्यान देना है। 2 डिवाइड a माइनस बी, देयरफॉर देयर विल बी a माइनस बी डिवाइड बाई 2, वी ऑब्टेन एन इंटीजर m, तो a माइनस बी इक्वल टू 2m। 2 डिवाइड b माइनस सी, तो इट इज ऑल्सो क्लियर दैट b माइनस सी बाई 2, b माइनस सी इक्वल टू 2n। ऐड करें तो a माइनस सी 2m प्लस n, m n एंड इंटीजर, तो सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर। तो a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, या 2 डिवाइड a माइनस सी, तो a इसमें क्या आ गया, ए सी बिलोंग्स टू आर, तो आर इज ट्रांजिटिव, तो तीनों हो गया। तो देयरफॉर आर इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर क्वेश्चन। आगे कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा क्लैरिटी यानी स्टार्ट हुई, है ना। और इस तरह के इस काफ़ी क्वेश्चंस हमें मिलते जाएंगे, स्पेशली इस रूल के क्वेश्चन, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम लॉजिक के ऊपर, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूशन में है। तो एक और एग्जांपल देखिए, यानी क्वेश्चन, फिर हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज का देखें तो एनसीईआरटी का 8 क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, व्हाट इज सेट ए, 1 2 3 4 5, दिस इज द सेट having element 1 2 3 4 5 and relation R, what is the relation R, A B, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, such that mod A minus B is even, is an equivalence relation। सबसे फर्स्ट पार्ट तो ये है इक्विवेलेंस रिलेशन। और अगला पार्ट इसमें ये है, चलिए
वो बाद में करेंगे, पहले आप आधा क्वेश्चन में यहाँ लिख देंगे, बाद में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट पहले आप जो कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग चलें। ए रिलेशन आर इन ए सेट, यहाँ पर वहाँ इंटीजर था, यहाँ डिफाइंड है सेट, तो सिर्फ यही एलिमेंट है। और रिलेशन ए बी सच दैट मोड ए माइनस बी इज इवन, एक तरह से कह सकते हैं ए माइनस बी मोड इज डिविजिबल बाई 2, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका एक पार्ट हो रहा है, वो बाद में करेंगे। तो पहले आप जितना अभी किया है उसको देखिए। फॉर रिफ्लेक्सिव तो लिखते जाएंगे ए बिलोंग्स टू आर इक्वल टू ए कर दें, ए माइनस ए, जीरो आ गया, यस, जीरो इज यूनिक नंबर कैन टेकन एज इवन, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। व्हाट इज द नेचर ऑफ जीरो, है ना, जीरो इज यूनिक नंबर, तो अकॉर्डिंगली इट इज कैन टेकन एज इवन। फॉर सिमेट्रिक मूव करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर implies that mod a minus b is even। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, b माइनस ए इज ऑल्सो इवन, मोड से बाहर आके माइनस वो भी प्लस हो जाता है, तो b माइनस ए इज इवन, यानी बी ए बिलोंग्स टू आर में आर इज सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन काफ़ी स्मूथ रहता है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री का, और ये कोई नेसेसरी नहीं कि आएगा, ये तुमने पीछे देखा नहीं आया। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में थोड़ा ध्यान देना है। ए बी बिलोंग्स टू आर, क्या दिया है, एज इट इज कॉपी, ए माइनस बी इज इवन, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी माइनस सी इज ऑल्सो इवन। इसका मीनिंग इवन मीनिंग 2 से डिविजिबल है ना, तो इसे 2 से डिविजिबल करेंगे जैसे अभी कर रहे थे डिस्कस। तो जब 2 से डिविजिबल करेंगे तो कुछ इंटीजर आएगा m, तो a माइनस बी हो सकता है 2m, लेकिन मोड है तो प्लस माइनस बी हो जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m एंड b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m, m and बिलोंग्स टू सेट a। अब यहाँ पर प्लस माइनस है तो दो बार लेंगे, टेकिंग प्लस साइन एंड ऐड, दोनों में प्लस साइन लो और ऐड करें, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी कितना आ गया, इज इक्वल टू a माइनस सी, इधर 2 कॉमन, m प्लस n, है ना, टेकिंग माइनस साइन एंड ऐड, तो करिए माइनस ए माइनस बी माइनस बी माइनस सी, है ना, माइनस साइन लेकर ऐड करते हैं, और जब उधर लेने माइनस साइन नो प्रॉब्लम, तो ऐसे करें, इधर रहने दें ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पर आप ले लें माइनस 2m प्लस n, तो ये आ जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस n, और यहाँ a माइनस सी, तो यूजिंग बोथ, है ना, इधर a माइनस सी, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस n, तो ये कह सकते हैं कि मोड a माइनस सी 2 से डिविजिबल है, इज इवन, क्लियर, तो वी कैन से r इज ट्रांजिटिव। तो अगर a माइनस सी, एक बार और देखें, एक बार ऐड करेंगे प्लस साइन लेकर, तो 2m प्लस n, तो फिर यहाँ माइनस लेंगे माइनस 2m प्लस n, तो इसका मीनिंग a माइनस सी एक बार 2m प्लस n, एक बार माइनस 2 a माइनस सी दिस, तो डिविजिबल बाई 2, तो इट इज इवन, और प्लस माइनस है तो मोड इज इवन, तो r इज ट्रांजिटिव, तो देयरफॉर r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट, शो दैट
ऑल एलिमेंट ऑफ, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर, related to each other. All element of 135 related to each other. Every है ना, each element of 135 इसी क्वेश्चन का पार्ट है, are related to each other. What is the meaning of relation? The difference of two number, the mode of difference of two number is given. तो देखो लेके 1 माइनस 3 कितना आ गया 2 का मोड. एक और ले लो 1 माइनस 5 कितना आ गया 4. एक और ले लो 3 माइनस 5 कितना आ गया 2. इसका मीनिंग इवन आ गया ना. द डिफरेंस का जो मोड है ऑलवेज इवन. ए माइनस बी मोड इज इवन. तो एनी टू नंबर आप पेयर बनाइए, 1 3 का मोड 2, 1 5 का मोड 4 3, तो डिफरेंस हर एक केस में डिफरेंस जो मोड में है इवन है. तो ईच एलिमेंट ऑफ 135 रिलेटेड टू ईच अदर. एलिमेंट ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर. एक केस में ये भी दे देता है कि शो दैट ईच एलिमेंट ऑफ 2 4 जो बचे हुए हैं और रिलेटेड टू ईच अदर. तो देखो 2 माइनस 4 ये भी 2 हो गया, 4 माइनस 2, तो ईच एलिमेंट ऑफ 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर. फिर वो कहता है कि द ईच एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप नॉट रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप. तो डिफरेंस देखो 2 माइनस 1 1, इट इज़ नॉट इवन. 4 माइनस 3 नॉट इवन. 4 माइनस 5, तो ई नो एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप. क्लियर. तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था जो इस क्वेश्चन में हमने किया है. एक दो क्वेश्चन और देखेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे. एक्सरसाइज 1.1 ही हम कर रहे हैं. क्या नेम है एक्सरसाइज का? 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है. रिलेशन आर इन ए सेट ए. और व्हाट इज सेट ए? 1 2 3 30. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है. डिफाइन एच. व्हाट इज द रिलेशन आर इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने किए वो थे अभी, एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. डिटरमाइन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड एनीथिंग, कुछ भी, है ना. ये सिर्फ सीखने के लिए है. बेसिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता जा रहा हूँ. तो चलिए रिलेशन बनाएंगे. यू हैव टू वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 3x. तो व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन इज सबसेट ऑफ एक रो से. तो आपको एक रो से लिखेंगे तो 14 एलिमेंट इसके 14 कितने बनेंगे? तो सिर्फ आप वो एलिमेंट लिखें जहाँ वर y 3 टाइम्स हो x के और वो बिलोंग करे a से. जैसे x को 1 ले लें तो y 3, x को 2 ले लें y 6, x को 3 ले लें y 9, x को 4 ले लें 12, x को 5 ले लें ये 15. लेकिन 15 तो इसमें है नहीं, तो आप यहीं रोक देंगे. तो आपके पास ये है. अब चेक करते हैं. 4 रिफ्लेक्सिव, ए रिलेटेड ए. तो क्या है सारे? जैसे 1 1 बिलोंग्स टू आर, नो. 1 1 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, कोई भी नहीं है. तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. चलो तो फिर सिमेट्रिक देखते हैं, है ना. सिमेट्रिक पे आ जाइए. ए रिलेटेड बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना. ए रिलेटेड बी कोई भी ले ले, चलो 1 3, है ना, ये है ना. तो 1 3 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर. तो आर इज नॉट सिमेट्रिक. आर इज नॉट सिमेट्रिक. अब आते हैं
4 ट्रांजिटिव, 4 ट्रांजिटिव। तो ले लेते हैं ए बी रिलेटेड बी, तो ये ले लें 1 3, 3 से कोई स्टार्ट है, ये 2 लेते हैं। 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड ए बी फिर बी सी, 3 9 बिलोंग्स टू आर। ए सी आना चाहिए, यानी 1 9 बिलोंग्स टू आर और नॉट आर है ही नहीं 1 9 तो, है ना। तो इसका मीनिंग ऐसे कैसे ना, ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, इस सेंस में है ये। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। एक और देख लेते हैं और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इस सेट है ए, क्योंकि यहाँ स्पेस कम बचा है और टाइम भी कम है, 3 4 5 6। रिलेशन आर इज डिफाइंड such that a comma b such that b is equal to a plus a. Check the status reflective, transitive और सिमेट्रिक। तो चेक करते हैं, पहले रिलेशन बना लेते हैं। किसमें डिफाइन है, बोथ ए बी बिलोंग्स टू ए। तो चलिए ए को आप सबसे 1 रखेंगे तो बी आ जाएगा 2, इसको रखेंगे 2 तो बी आ जाएगा 3, ए को रखेंगे 3 तो ये 4, ए को 4 तो ये 5, ए को 5 तो ये 6। इससे ज़्यादा नहीं आ सकता क्योंकि लास्ट एलिमेंट। रिफ्लेक्सिव के बारे में बताइए। ए रिलेटेड है तो 1 1, बाकी तो देखने की बात ही दूर है, नहीं बिलोंग करता, नॉट रिफ्लेक्सिव, नहीं है ना रिफ्लेक्सिव। चलिए 4 सिमेट्रिक, चेक करिए सिमेट्रिक। ए बी रिलेटेड टू आर तो बी ए बी होना चाहिए, तो ले लो इसे 2 3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट 3 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये भी नॉट हो गया। 4 ट्रांजिटिव। ए बी बी सी, ए रिलेटेड बी तो 1 2 2 3 ले लें। 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 also belongs to R, implies that 1 3 है 1 3 नो, तो नॉट ट्रांजिटिव। तो आपने देखा आज हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस की, कुछ स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स ली। तो एक क्लास और हम इसके अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये 2 क्लास का ही टॉपिक है। तो आज के लिए इतना, इसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, है ना, और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।